Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture number 8, that is BEE Unit 2, lecture number 8, I am going to talk about the RMS value, root mean square value and average value of an alternating quantity. RMS value का दूसरा नाम effective value है. So effective value and average value of an alternating quantity. After studying this presentation, you will be able to understand what is the RMS value, what is the average value, what is the form factor, what is the peak factor. We will discuss all these things. First of all, what is the RMS value? RMS value of an alternating current is given by that steady, that is DC current, which when flowing through the given circuit for a given time produces the same heat as is produced by the alternating current which flow through the same circuit for the same time. इसका मतलब क्या है? Alternating value किसकी होती है? Suppose करो I am drawing and here one resistance is there, right? And here I am connecting the source. So we are supplying the DC current. This is the time, and DC current I am applying capital, I am writing capital I, DC current capital I. Through the same resistance I am flowing. So what will happen? So heat will, when the current will flow, I square R loss will be there, that is power loss into time, and I am supplying this current for the t second. So heat कितनी प्रोड्यूस होगी DC, in case of DC heat प्रोड्यूस क्या होगी I square into R, that is power loss into time. This is the amount of heat produced by DC for the time t second through the resistance R ohm. Now through the same circuit, I am supplying, suppose करो I am supplying AC. This is the alternating current. So value of this particular value of alternating current, heat produced by AC is more than DC or less than DC? Obviously less than DC. Why? This value is less than this value, that's why it is less. This particular value of AC, heat produced by AC again will be less than DC. This particular value of AC, heat produced by AC will be more than the heat produced by DC, because current ज़्यादा है तो heat भी ज़्यादा होगी. लेकिन एक this particular value of AC here, this particular value of AC, right? This value, heat produced by AC and heat produced by DC will be same. So this particular value of alternating current called its RMS value. Clear? तो वो निकालना है. तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल है. अब आप बोलेंगे सर आपको मालूम है आरएमएस वैल्यू इक्वल में है, तो डीसी की वैल्यू ही आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी है, तो फिर क्यों डिफाइन करने की जरूरत? भाई डीसी है ही नहीं है, 10 फिक्सिटी है अज्यूम किया है. क्लियर ना? तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू कॉल्ड पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट कॉल्ड इट्स आरएमएस वैल्यू. From definition I got it. So what is the RMS value of an किसकी रहना है? RMS value of alternating current is given by the DC current which when flowing through the given circuit for the given time produces the same heat as is produced by DC which when flowing through the given circuit for the given time. So अगर same heat produce हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम? RMS value. Clear? तो वन रेजिस्टेंस है, उसमें हमने क्या सप्लाई किया? डीसी करंट फ्लो किया है. डीसी करंट फ्लो करने के बाद फॉर द टाइम टी सेकंड के लिए तो हीट प्रोड्यूस क्या हो गई? आई स्क्वायर आर क्लियर इनटू टी सेकंड थ्रू द सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम आई एम सप्लाइंग द एसी. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? ये AC का फॉर ए स्मॉल टाइम dt टाइम के लिए कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? dH इक्वल टू आई स्क्वायर टी फॉर R इंटू dt. टी क्या बता रहा है? ये टाइम वेरिंग क्वांटिटी है.
यहाँ पर आई ऑफ, इसको आप आई लिख सकते हो या आई ऑफ टी लिख सकते हो, बोथ आर मीनिंग। इसका मतलब क्या है, टाइम वेरिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अगर आपको इसको डी एच कब है, जब डी टी टाइम के लिए, और ये करंट कितना है एक साइकिल के लिए, टी सेकंड है ना, कैपिटल टी, एक सेकंड के लिए, एक साइकिल का टाइम। तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, इंटीग्रेट, किसी चीज को बढ़ाना है तो इंटीग्रेट 0 टू टी डी एच, इंटीग्रेट 0 टू टी आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। सो दिस इज द हीट प्रोड्यूस बाई एसी हो गई। अभी एज पर डेफिनेशन दोनों को इक्वल करना है, दिस इक्वल टू दिस कर देंगे, तो दिस करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, इसका आर और इसका आर कैंसिल। सो आई, आई क्या आएगा, आई इक्वल टू क्या आएगा, अगर दोनों को इक्वेट किया आपने, दिस को इसको, हीट प्रोड्यूस बाई एसी एंड हीट प्रोड्यूस बाई डीसी को इक्वेट किया तो आर विल बी कैंसिल। आई क्या आएगा, आई स्क्वायर है तो आई निकालना है, तो क्या निकालना है, अंडर रूट ये इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी, और ये जो टी है वो यहाँ आएगा तो 1/, okay, so capital T is a capital T, okay. So this is the formula I am getting for RMS value. So you can use this formula you can find the RMS value for any quantity. I am rubbing it, sorry. Just next slide. A. So heat produce you can calculate ये फार्मूला से, I इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 1 कैपिटल T 0 टू T इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T आई स्क्वायर, सॉरी ये T नहीं है इधर, आई स्क्वायर है, ओनली आई स्क्वायर, प्लीज कट इट, सॉरी ये T नहीं है, आई स्क्वायर डी टी, ओके। ये वो T है तो T ब्रैकेट में है, इट इज द टाइम वेरिंग क्वांटिटी, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकोगे, मतलब टाइम वेरिंग क्वांटिटी है, ओके। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू। आर का मतलब है रूट है, एम का मतलब है मीन, वन वी हैव टू डिवाइड बाय वन साइकिल का टाइम 1/t, एस मतलब स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, तो रूट मीन स्क्वायर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज आरएमएस वैल्यू। इसका दूसरा नाम क्या है, इफेक्टिव वैल्यू। सो इन दिस वे दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला आई एम गेटिंग, and based on that formula you can find the RMS value of any waveform, root mean square, okay. Next, now generally examiner asks this question, derive the RMS value of an full wave sinusoidal current, RMS value of full wave sinusoidal current। तो RMS वैल्यू ऑफ फुल वेव साइनसॉइडल करंट क्या होगी, फर्स्ट स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ इक्वेशन क्या है, I इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, I इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी और I इक्वल टू आई एम साइन ऑफ थीटा। RMS वैल्यू क्या होगी, आई आर एम एस रूट, क्लियर, मीन। अभी जब साइनसॉइडल क्वांटिटी है तो आई टोल्ड यू अर्लियर लास्ट प्रेजेंटेशन में, डोंट टेक द टाइम हियर, यहाँ क्या लेंगे हम, एंगल ओमेगा टी। और एक साइकिल क्या होती है, एक साइकिल ये है, एक साइकिल का ये क्या आएंगे, टाइम लेंगे कि एंगल, पाई ए 2 पाई ए आई आई एम ओके, सो इट इज आई एम। सो यहाँ कर लेंगे, whenever you are talking about sinusoidal quantity don't take the time angle, तो बेस क्या लेंगे, वहां पर 1/t था, that was the generalized formula, यहाँ क्या लेंगे 1/2 पाई, एक साइकिल का एंगल 2 पाई, इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, 0 टू 2 पाई आई स्क्वायर टी, और यहाँ इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एंगल के, क्योंकि यहाँ सब कुछ एंगल है, तो एंगल क्या है, थीटा या डी ओमेगा टी, राइट। सो प्लीज बी केयरफुल, साइनसॉइडल है तो एंगल का लेंगे और नॉन साइनसॉइडल है तो टाइम लेंगे। सो आई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई एक साइकिल, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी थीटा, आई की वैल्यू क्या होती है, आई एम साइन थीटा। तो टेक द आई एम कॉमन, आई एम स्क्वायर बाहर निकाल लिया,
एंड वी कांट इंटीग्रेट साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। बट हमको मालूम है एक चीज, 1 साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट वी कैन इंटीग्रेट दिस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा। दिस फार्मूला वी नो। सो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये कॉस थीटा यहाँ आएगा यहाँ, सो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा। सो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई एम राइटिंग 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, और ये 2 यहाँ का यहाँ आ गया, तो यहाँ 2 पाई था तो यहाँ 4 पाई लिख दिया, तो 2 यहाँ है वो 2 यहाँ लेके 4 पाई कर दिया, राइट। सो इन प्लेस ऑफ दिस मैंने ये कर दिया, ओके। नाउ आई कैन इंटीग्रेट 1 इन कॉस ऑफ 2 थीटा, सो क्या आएगा, आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी थीटा क्या होगा, थीटा, एंड कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस साइन है तो माइनस कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अपॉन 2 पुट द लिमिट 0 to 2 पाई, ओके। सो ये रख दिया। नाउ साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई, साइन 2 इंटू 2 पाई 4 पाई 0, एवरीवेयर इट इज 0। तो ये टर्म 0 कट हो जाएगी, ये रहेगी नहीं, क्यों, साइन पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 0 जाने वाला, फॉरगेट इट। सो आई अंडर रूट ऑफ आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और यहाँ थीटा के बदले में 2 पाई माइनस 0 मतलब 2 पाई आ जाएगा, अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, सो 2 पाई, एंड पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 2, सो आई एम स्क्वायर अपॉन 2, और अब इसको अंडर रूट हटाएंगे तो आई एम आ जाएगा, और 1 अपॉन रूट 2 का 1 अपॉन 2 का रूट 1 अपॉन रूट 2, दैट इज 0.707 आई एम, दैट इज द आरएमएस वैल्यू। इसका एक फार्मूला क्या है, इक्वल टू व्हाट, आई एम बाई रूट 2 आएगा, आई एम बाई रूट 2 लिखो या 0.707 आई एम। सो आरएमएस वैल्यू फॉर फुल वेव साइनसॉइडल करंट इज 0.707 IM या IM by root 2. That is very important formula derivation, and हमको ये जिंदगी भर याद रखना है, RMS वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू का डिवाइड बाय रूट 2 टाइम्स, क्लियर। और अगर नॉन साइनसॉइडल वेव है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, IRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट मीन्स IA1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस डैश 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 IN स्क्वायर अपॉन n। This is one way, other way we have, okay। कुछ और भी फार्मूला हैं जो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट मैं एक ले लेता हूं बोर्ड पे, यहां मैं ले लेता हूं, another wave I have, ओमेगा टी, और ये ऐसी है, ऐसी है, इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफाइड, पॉजिटिव वेव है, नेगेटिव वेव 0, हाफ वेव रेक्टिफाइड। इसका क्या आएगा, आई इक्वल टू आई एम, आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस क्या होगा, रूट मीन मीन्स व्हाट, डिवाइडेड बाई एक साइकिल का टाइम कितना है, एक साइकिल 0 पाई 2 पाई, एक साइकिल कंप्लीट यही हो रही ना। यहाँ अलग बात है कि यहाँ से यहाँ 0, साइकिल कंप्लीशन यहाँ नहीं है, साइकिल कंप्लीट यही है, शेप कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से ना, वन साइकिल इज कंप्लीटिंग एट 2 पाई, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। साइकिल कंप्लीट कहाँ हो रही है, जहाँ से शेप रिपीट हो रहा है, यू कैन सी शेप इज रिपीटिंग फ्रॉम हियर 1/2 पाई। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to पाई की 2 पाई, पाई वाई, यहाँ पाई 2 पाई है, लेकिन पाई से 0 से पाई तक है वेव से यहाँ पाई से 2 पाई क्या है, 0 है ना, तो यहाँ 0 आएगा, तो 0 to पाई
आई एम आई स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी, या आई स्क्वायर डी थीटा। ऐसा आपको चाहिए नहीं सर ये पाई से 2 पाई क्या है, तो यहाँ चाहो तो आप फिर से लिख सकते हो, यहाँ अंडर रूट में प्लस पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई क्या है, 0 है ना, 0। तो दिस इज द वे, राइट ना। ओके ओके, एक और वेव है ऐसी, फुल वेव रेक्टिफाइड, like this, like this, like this, like this. This is called as full wave rectified. This is half wave rectified. Okay, full wave rectified में क्या लेंगे, IRMS क्या लेंगे, रूट मीन कितना है, एक साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रही है, यहाँ फिर से शेप रिपीट हो रहा है, फिर से शेप रिपीट हो रहा है, तो वन साइकिल इज नॉट कंप्लीटिंग हियर ओनली, यहीं कंप्लीट हो रही है, 0 पाई, शेप इज रिपीटिंग हियर। सो एक साइकिल का बेस कितना है, 1 अपॉन पाई। इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, 0 से पाई, like that. So be careful, this is the, to develop your concept, this is called as half wave rectified, this is called as full wave rectified. Clear? So one cycle is completing here, but यहाँ complete हो रही थी, यहाँ से यहाँ 0 है, तो यहाँ बेस कितना लेंगे, एक साइकिल का ही लेंगे, लेकिन वेव फॉर्म कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 0 to पाई। So be careful about it. Okay? Okay, I'm coming back. This is over. Average value. What is average value? Same definition जो RMS value की थी, वहां पर produces the same heat है, यहाँ पर transfer the same charges, but that is the difference. Transfer the same charges as transferred by alternating current. So what is the average value? यहाँ पर क्या था, RMS value of an alternating current is given by the DC which when flowing through the given circuit for the given time produces the same heat as is produced by AC. Average value में क्या आएगा, average value of an alternating current is given by that DC which when flowing through the given circuit for the given time transfer the same charges as is transferred by AC. That value of alternating current called its average value. Okay, so definition is same, थोड़ा सा चेंज है। अभी एवरेज वैल्यू, हाउ टू फाइंड द एवरेज वैल्यू, सो दो तीन तरीके हैं। पहला, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज वैल्यू इज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एरिया ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, दैट इज द वे। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ वेव, क्या आएगा, एरिया अपॉन टाइम पीरियड ऑफ वेव ऑफ वन साइकिल, ठीक है। सेकंड, दूसरा, अगर नॉन साइनसॉइडल है, कुछ भी है, एक ऐसी वेव है जिसका कुछ भी इक्वेशन नहीं है, तो उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ, मान लो हम इसको डिवाइड एन पार्ट में कर लो, मान लो सपोज करो आई एम जस्ट टेकिंग, ऐसा है एक वेव, जस्ट हियर आई हैव वन वेव, दिस इज द वेव आई हैव टी, नॉन साइनसॉइडल, एक ऐसा वेव है, एक randomly, I don't know the equation, so I have to find the average value of this wave, so I will divide this into n equal interval of time, like this। इसकी एवरेज वैल्यू, लेट अस से इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, I1। सेकंड की एवरेज वैल्यू क्या है, I2। इसकी एवरेज वैल्यू सेकंड ग्रुप की I2, इसकी क्या है, IN। I have divided this
टाइम पीरियड इंटू ईच एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टी बाई एन। सबका टाइम पीरियड क्या होगा, टी बाई एन टी बाई एन टी बाई एन। वाई, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड इनटू एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई एवरेज इक्वल टू कैपिटल I1 फर्स्ट एवरेज वैल्यू ऑफ फर्स्ट वन प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ सेकंड इंटरवल की क्या थी I2 प्लस थर्ड की क्या है I3 प्लस लास्ट की क्या है डैश 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 IN। सबकी एवरेज वैल्यू निकालो डिवाइडेड बाय द n इंटरवल ऑफ टाइम, n नंबर से डिवाइड कर दो। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू। किसका फार्मूला है, जब हमको किसी वेव फॉर्म का इक्वेशन नहीं मालूम तब। अगर you don't know equation of any waveform, then you can find the average value of each interval and divide by the n। लेकिन अगर आपको ऐसी एक वेव फॉर्म है जिसका इक्वेशन मालूम है, so how will you find the average value? so average value क्या होगी, average value क्या होगी, area of the wave upon time period। time period। so this is the way of finding the average value। now I have a sinusoidal wave। साइनोसाइडल वेव का एवरेज वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड द एवरेज वैल्यू, एरिया निकालो अपन टाइम पीरियड। लेकिन क्लियर ना, अभी एक और वेव है, सपोज करो कि आई हैव गिवन नॉन साइनोसाइडल, ये टाइम दिया है और ये दिया है, ऐसा दिया है, सॉरी ये दिया है, ये 10 है, ये सेकंड है और ये 50 है हाइट। How will you find the average value? Average value is what? I told you already, area। area कैसे, एक साइकिल, ये एक साइकिल का एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ हाइट, व्हाट इज हाइट 50 इंटू बेस कितना है 10, दैट इज द एरिया अपॉन बेस क्या है एक साइकिल का 10, सो 25, एवरेज वैल्यू इज 25। इज इट क्लियर? सो एवरेज वैल्यू निकालना नॉन साइनोसॉइडल वेव का बहुत सिंपल है, ओके। सपोज करो अनदर वेव आई हैव, ऐसी वेव है, ऐसी है, दिस इज द सिमेट्रिकल, इसकी ये 10, ये 20, ये 50। So how to find the average value? We can find the average value by area upon base, area upon base। एक साइकिल कहाँ कंप्लीट हुई 20 पे, सो एवरेज वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। वाई, दिस इज, इसकी एवरेज वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगी, इसकी एवरेज वैल्यू फॉर नेगेटिव आने वाली, सो एवरेज वैल्यू विल बी जीरो। सो इन सच केस व्हेन द सिमेट्रिकल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, एवरेज वैल्यू वी विल फाइंड ओनली फॉर हाफ साइकिल। बी केयरफुल अबाउट इट, चाहे वो साइनोसॉइडल हो चाहे नॉन साइनोसॉइडल, अगर सिमेट्रिकल है तो हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं, अनसिमेट्रिकल है तो फुल साइकिल के लिए निकालते हैं। तो इसकी एरिया हाफ साइकिल का क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगी, मान लो ये V दिया है, स्मॉल v, सो कैपिटल V द एवरेज वैल्यू AV, एवरेज वोल्टेज AV क्या होगा, एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, हाइट इंटू बेस, 10 बेस है इंटू हाइट कितनी 50, दैट इज द एवरेज वैल्यू, एरिया हो गया एक हाफ साइकिल का, अपॉन बेस कितना लेंगे हाफ साइकिल कितना 10, 10 will be cancelled, you will get 50। so this is the way of finding the average value, clear na? another way I have given, सपोज करो कि आपको एवरेज वैल्यू इसकी निकालना है,
like this. Clear na? This is 50, this is 10, 20. एक साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रही है? यहाँ हो रही है. This is one cycle is completing. So how to find the average value? I suppose करो ये 50 एम्पियर है, so यहाँ I लिखा है. So we'll find the average value of IAV. कैसे निकालेंगे एवरेज वैल्यू? इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू हाइट कितनी है 50 इंटू बेस कितना है एक साइकिल का 10 अपॉन दिस 10 a base area upon base. 10 will be cancelled. 50 upon 2, that is 25 ampere. So you can find the average value for any waveform. Clear? But whenever we have given the sinusoidal quantity, the average value, how to find the average value, I am going to discuss. Okay? I am coming back. So please, average value कैसे निकालना है? Now please be careful about it. I told you already, the average value is also obtained by area under the wave divided by the time period, right? While calculating the average value of symmetrical waves, the average value will be found only for half cycle. But because for full cycle के लिए क्या हो जाएगा? Symmetrical है तो 0 आएगी. So only for half cycle. But अगर unsymmetrical है तो we will find the average value for full cycle. Okay? Now find the average value of full wave sinusoidal current. Full wave sinusoidal current कैसा होगा? It is like this. कैसा? It is like this. Clear? Pi यहाँ क्या आएगा साइनसॉइडल के लिए? ओमेगा टी. Okay, so standard formula क्या है? Equal to Im sin theta. Okay, so average value area upon base. Now symmetrical है कि unsymmetrical? It is symmetrical, so only for half cycle. So base कितना आएगा half cycle का? Pi. Okay, now area क्या लेंगे? 0 to integrate 0 to pi I d theta. That is a average value area आ जाएगा. This is the for area upon base. 0 to pi integration from 0 to pi I d theta. 0 to pi I equal to क्या होता है? Im sin theta d theta upon pi. 1 upon pi कॉमन लिया, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to pi Im sin theta d theta. तो Im को कॉमन लिया तो Im by pi हो जाएगा. ये sin theta का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos of theta. पुट द लिमिट 0 to pi. So माइनस बाहर लिया Im, माइनस Im by pi. पुट द लिमिट पाई की साइन ऑफ कॉस ऑफ पाई -1 होता है, माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ 0 1 होता है. तो क्लियर? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 1 + 1 2 Im by पाई. 2 अपॉन पाई होता है 2 Im by पाई, दैट इज एवरेज वैल्यू. और 2 अपॉन पाई होता है 0.637 Im बार. सो एवरेज वैल्यू क्या होगी? 0.637 Im या फिर यू कैन राइट 2 Im by pi या 2 Vm by pi. Clear? So this is the way of finding the average value for full wave. Half wave के लिए you know how to find, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ था, how to find the average value of half wave, full wave rectified, you can find it. Okay? Form factor. What is a form factor? It is defined as the ratio of RMS value to the average value. Form factor is the ratio of RMS upon average. RMS क्या होता है? 0.707 Im फुल साइनसॉइडल के लिए, फुल वेव साइनसॉइडल के लिए. एंड एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0.637 Im. So Im will be cancelled. This upon this equal to, you will get 1.11. So form factor equal to always 1.11. Peak factor क्या होता है? It is defined as the ratio of maximum value to the RMS value. Maximum value upon
RMS. That ratio is called as peak factor or crest factor or amplitude factor. So Kp equal to peak value upon RMS value. Okay, यहाँ equal आएगा, sorry, equal to what? IM, peak value मतलब IM upon 0.707 IM. So IM will be cancelled, 1 upon 0.707, that is 1.414. That is the peak factor for full wave sinusoidal current. So you can define the form factor and peak factor, right? Examiner may ask this definition. And last one I want to discuss, that is the some numerical based on that. An alternating voltage is represented by this equation. This ये इसमें ये क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज एंड फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू. सो फुल वेव है ये, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज वीएम साइन ऑफ ओमेगा टी दिया है. ओके, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू. वी हैव ऑलरेडी ड्राइव दैट फार्मूला, फिर से ड्राइव करने की जरूरत नहीं. न्यूमेरिकल में तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी? वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई रूट टू या 0.707 वीएम. वीएम कितना है? 141. So this into this equal to, you will get 100 volts. 99.98 means 100 volt. Okay. सेकंड पूछ रहा है वो फ्रीक्वेंसी. ये क्या है? ये Vm sin ओमेगा. ये क्या है? ओमेगा 628. ओमेगा इक्वल टू व्हाट? 628 इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ. 2 पाई एफ इक्वल टू 628. सो एफ इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई, दैट इज 628 अपॉन 2 पाई. यहाँ रेडियन में ही रखना है, पाई मतलब 3.14. दिस अपॉन 2 पाई. डोंट पुट हियर 180 डिग्री. साइन समथिंग नहीं है, ये कैलकुलेटर नहीं कर रहा ऑपरेट. क्लियर ना? तो 628 अपॉन 2 पाई मतलब दिस अपॉन 2 into 3.14, you will get 100 hertz. Next is the time period. Time period क्या होती है? 1 upon f. 1 upon f, 1 upon 100. 1 upon 100 करेंगे तो 0.01 सेकेंड आ जाएगा. ओके, so it is very simple problem. Next problem I'm going to talk. Okay. Second problem is 60 hertz sinusoidal current has an instantaneous value of 0.07 ampere at t equal to 0. जनरली हम क्या करते हैं? वेव फॉर्म ड्रा किया, प्रॉब्लम दिया है कि हमें ऐसे शुरू कर देते हैं इन दिस वे, बट इट इज रॉन्ग. इट इज गिवन एट t इक्वल टू 0. करंट की वैल्यू कितनी है? 7.07. मतलब वो पहले से शुरू हो रही है इधर से. So it is the wave here. This is the wave we have given, and at t equal to 0, what is the value of current? This current कितना दिया है? 7.07 ampere. Please be careful about it. This problem, this figure is wrong, right? So at t equal to 0 current कितना है? 7.07 ampere. Okay. इसका मतलब वो लीड कर रही, पहले से शुरू हो रही है. Okay. एंड आरएमएस वैल्यू कितनी दिया है? 14.14 एम्पियर. आईआरएमएस कैपिटल आईएम कितना दिया है? 14.14. आईआरएमएस क्या होता है? 0.707 आईएम इक्वल टू 14.14. सो आईएम निकल जाएगा इससे. आईएम कैसे निकालेंगे? दिस अपॉन 0.707, दैट इज 20 एम्पियर यू विल गेट. आईएम मिल गया. इक्वल टू, ओके. सो इक्वेशन ऑफ करंट क्या आएगा? आई इक्वल टू क्या आएगा? आई एम साइन ऑफ थीटा. ओके, नहीं ये सॉरी, ये समथिंग इज रॉन्ग. आई इक्वल टू क्या आएगा? आई एम साइन ऑफ थीटा प्लस फाई. और थीटा क्या होता है? थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ टी. यहाँ थीटा लिखो या ओमेगा टी लिखो या 2 पाई एफ टी लिखो. सो इक्वेशन क्या है यहाँ पर? एक्चुअली इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम 0? नहीं, तो यहाँ पर आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा नहीं लिख सकते. तो हम पहले से शुरू हो रही, तो लीड कर रही, तो आई इक्वल टू आई एम साइन ऑफ थीटा प्लस 5. ओके, नाउ आई हैव गिवन एट t इक्वल टू 0 करंट कितना है? 7.07. सो आई इक्वल टू कितना दिया है? 7.07 ये दिया है.
7.07. IM कितना है 20. I have calculated here. Clear? Sin of थीटा t इक्वल टू 0 ना, एट t इक्वल टू 0 तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस व्हाट 5. तो ये क्या आएगा 7.07 इक्वल टू 20 साइन ऑफ 5. सो यहाँ 5 मिल जाएगा. सॉरी मैं थोड़ा सा वर्डिंग बदल दिया, आप चाहो तो थीटा यूज करो. 5 इक्वल टू, इससे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस. So what is the standard equation of current? I equal to 20 Im sin of 2 pi ft plus रेडियन में लिखना है तो रेडियन में लिखो, डिग्री में लिखना है तो कितना है 20, कितना था 20.7 डिग्री, सॉरी कितना है 20.7. okay, so this is the formula, I got it, standard formula of current रेडियन में ये, और यार प्लस 20 डिग्री लिखा तो डिग्री मोड में. नेक्स्ट, now they are asking find the expression of current. okay, correct है. second, magnitude of current at t equal to 0.0125 second from, यहाँ से टाइम दिया 0.0125 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये वैल्यू ऑफ करंट आएगा. यहाँ से 0 से दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम दिया है 0.0125 सेकेंड. तो यहाँ कुछ नहीं करना, I इक्वल टू निकालना है 20 साइन 2 पाई एफ टी प्लस 20.7 लिख लिया. अभी क्यों, कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखा है, तुमने 20.7 डिग्री लिख दिया, राइट. 20 साइन 2 पाई कितना लेंगे 180 डिग्री लेंगे, एफ कितना दिया है 60 हर्ट्ज, ये टी कितना दिया है 0.0125 सेकेंड प्लस 20.7 तो है ही, तो ये आएगा, यू विल गेट माइनस 18.7. जस्ट यू पुट द वैल्यू, यूज द कैलकुलेटर, यू विल गेट. ओके, ये नेगेटिव ही है देखो. सेकंड पूछ रहा है वो बी पार्ट में, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट दिस टाइम एंड दिस टाइम 0.025 सेकेंड्स. वही फार्मूला I इक्वल टू स्मॉल I इक्वल टू 20 साइन 2 पाई एफ टी 0.025 सेकेंड प्लस 20.7, यू विल गेट माइनस 7.07. ये यहाँ से टाइम दिया है यहाँ तक का, यहाँ तक कितना है माइनस 7.07 एम्पियर. So be careful of it, read the problem carefully, you will get all these answers. Okay. Next, another problem I have given. It is not a waveform is not given. It is a periodically varying voltage is given. Clear? ये टाइम दिया है और ये वोल्टेज दिया है. 0 टाइम सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. वोल्टेज दिया 0, 4, 8, 12, 16 लाइक दैट अप टू 0. मतलब ये दिया है हाफ साइकिल, हाफ साइकिल दी है, राइट. हाफ साइकिल दी है तो, और उसने लिखा है अदर हाफ बीइंग रिपीटेड, इसका मतलब नेगेटिव साइड, मतलब ऐसा दिया है. वो हमको जरूरत नहीं है. जब हमको क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो फुल साइकिल के लिए कोई जरूरत नहीं, हाफ साइकिल के लिए निकाल लेते. ओके, सो फर्स्ट ऑफ एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या दिया था आपको, एक फार्मूला बताया था. एवरेज वैल्यू कैसे निकालते, सम ऑफ ऑल द वेव्स I1 प्लस I2 प्लस I3, या वोल्टेज तो V1 प्लस V2 प्लस V3 लाइक दैट. क्लियर, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंटरवल. ओके, सो सम करेंगे तो क्या आएंगे 0 वोल्टेज का, 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0, सबका सम कर दो हाफ साइकिल का. हाफ साइकिल है ना, नेगेटिव हाफ की जरूरत ही नहीं, सबका सम कर दिया, डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी. कितने हैं, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 11 लेंगे कि 10, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द 10, टेक द क्वांटिटी 11. आई टोल्ड यू हियर नंबर ऑफ इंटरवल, कितने इंटरवल होंगे. अगर ये 11 क्वांटिटी है तो इंटरवल कितने, एक इंटरवल यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो इंटरवल क्या होता है, एक से कम हो जाएगा ना. तो डोंट टेक द क्वांटिटीज, इंटरवल लेना. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 is the quantities. So interval कितने होंगे 10. So 10, if you divide by 10, so you will get the RMS value like that.
सिमिलरली आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं? सॉरी, दिस इज द एवरेज वैल्यू, राइट? आरएमएस वैल्यू क्या होगी? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन मतलब नंबर ऑफ इंटरवल से डिवाइड करना, स्क्वायर, सो दैट इज द फार्मूला। सो क्या करेंगे? वोल्टेज कितना है? 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द इंटरवल कितने हैं? 10 और अंडर रूट। सो if you solve it you will get 11.66, right? Now form factor क्या होता है? It is defined as the RMS upon average. RMS वैल्यू कितनी है? 11.66 अपॉन एवरेज वैल्यू कितनी है? 10. RMS upon average 1.166. So this is the way. बट यहाँ मिस्टेक के चांस क्या आते हैं? डोंट टेक द नंबर, वी हैव टू टेक द नंबर ऑफ इंटरवल्स, राइट? दोनों जगह 10. ओके, so I had discussed the three numericals based on this RMS and average. Now I am going to discuss the assignment. What is the assignment? Define RMS value and average value. Second assignment, find the RMS value of full wave sinusoidal current in terms of maximum value. I told you we have derived the formula. RMS क्या होता है? Im by root 2, right? Thank you very much for observing, for listening me carefully and seeing this video.